Hello everyone. I once again welcome you to all for this lecture series of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. टिल नाउ अभी तक हम लोगों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नेचर ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में समझा. देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड ब्रीफ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Then the content of this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and finally we also understand what is object and purpose of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Again, in last lecture we also discussed कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता for the purpose of administration of offence or a fair administration of offence classify the offences under substantive law under different categories. हम लोगों ने समझा लास्ट लेक्चर में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने अपराधों का वर्गीकरण किया है और ये वर्गीकरण जो किया है वो प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए किया गया है. दिस वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड. नाउ टुडे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर द थ्री टर्म which is being prominently used in a Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and that is investigation, inquiry and trial. ये जो तीन शब्द हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स के रूप में देखा जाता है. तो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज़ इंक्वायरी एंड व्हाट इज़ ट्रायल, एंड देन फाइनली वी ट्राई टू कंक्लूड what is difference between investigation, inquiry and trial. And in the beginning lecture we discussed कि every offenses undergo with three stages. That is the main object of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, or that is a main line through which this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita try to regulate the criminal proceeding. And these three stages are called investigation, inquiry and trial. It means what? Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita mandate every offences shall be investigated, inquired, tried. हर offences का investigation किया जाएगा, then inquiry होगा और finally trial होगा. Then we come to the conclusion part and finally the court will decide whether a person in respect of whom acquisition is being made is guilty or innocent, and on that basis of guilty and innocence court will determine conviction and acquittal. So come to the first term, that is investigation. Normally in a simple parlance or a normal parlance or etymologically sense में अगर हम लोग investigation शब्द की बात करें तो इसका अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? अनुसंधान करना या जांच पड़ताल करना. It means, what does it mean? It means search in respect of certain fact in order to determine certain questions. किसी भी फैक्ट के रिस्पेक्ट में सर्च करना, और पर्पस क्या है उस सर्च करने का, सर्च ऑफ फैक्ट करने का, किसी भी क्वेश्चन को डिटरमाइन करना. दिस वी नॉर्मली अंडरस्टैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉर्मल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन. शाब्दिक अर्थ में हम लोग अनुसंधान या जांच पड़ताल को इसी तरीके से समझते हैं. But here Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita specifically define this term under section 21L. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने स्पेसिफिकली इस टर्म को अपने डेफिनेशन सेक्शन में 21L में डिफाइन किया है. और इन्वेस्टिगेशन हियर मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर द संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, and it is conducted always by the police officer or any authorized person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. It means, that is clear, investigation here means a proceeding. Proceeding includes many proceeding, because the term as defined under section 21L is investigation include all proceeding. Means it talks about investigation is a kind of proceeding and it includes many proceeding, and the purpose of which is to collect evidence. It means investigation is always being conducted for the purpose of collection of evidences. And who shall conduct the investigation? Who is authorized to conducting the investigation? Investigation is being authorized by either by the police officer
or by the person authorized by the magistrate. This way we understand four important points by reading the definition under section 2L of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita about the investigation. Investigation is a kind of proceeding, and here the term proceeding includes many proceeding. Investigation not only single proceeding. We can understand once the police receives the information, he will go to the spot, they will go to the spot, police will reach to the spot, then try to find out the fact surrounding in that spot. This way they will also conduct arrest, they will also conduct search. It means these all are part of the collection of evidence. This is why the term here being written like that, investigation includes all proceedings. So first thing which we understand in respect of investigation, जो हम लोगों ने पहली बात समझी कि investigation is a kind of proceeding. Now the purpose of this proceeding is to collect evidence, and finally we understand who is authorized to do this investigation. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita authorized police officer is to do the investigation, or any other person. If authorized by the magistrate, then he can also do the investigation. So these 4 points we will understand once we read the definition under section 2L of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Then come to the next term, inquiry. Inquiry here is being defined under section 21K. 21K define inquiry. Inquiry means every inquiry other than trial conducted by court or a magistrate. It means the three important points we will notice in the definition of inquiry. तीन महत्वपूर्ण बात हम लोग इंक्वायरी में नोटिस करते हैं, इंक्वायरी की परिभाषा में अंडर सेक्शन 21K में, कि इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, वट एवर द काइंड ऑफ इंक्वायरी, हर वो इंक्वायरी जो कि ट्रायल नहीं है. इट मीन्स all the things which is being done by court or magistrate other than trial is being covered under the term inquiry. जो भी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट करेंगे जो कि ट्रायल नहीं होगा, तो वो सब कार्रवाइयाँ इंक्वायरी के अंदर समाहित कर दी गई हैं. दिस इज़ वाई द डेफिनेशन इज बीइंग रिटन लाइक दैट कि एन इंक्वायरी अंडर भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता मीन्स every inquiry other than trial. Means other than trial means the proceeding which are not to be covered under the trial is an inquiry, and this inquiry is being conducted. Who is empowered to conduct the inquiry? Inquiry is being conducted by either court or magistrate. It means we understand this term inquiry. Inquiry is being a kind of judicial proceeding conducted by court or magistrate, and which the proceeding which is not trial is being covered under inquiry. Then finally we need to understand the term trial. Firstly, it is to be clear to you all, the term trial is not defined under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. ये सबसे पहले हम लोग को जान लेना होगा कि ट्रायल शब्द की परिभाषा नहीं दी हुई है. जैसे कि इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा हम लोगों ने देखा 21L में दी हुई है. देन हम लोगों ने इंक्वायरी की परिभाषा देखा सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और K में दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे जो है ट्रायल शब्द की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं दी गई. इन एब्सेंस ऑफ इट व्हाट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ट्रायल. So we will understand that trial is a kind of judicial proceeding. It is a kind of a judicial process, a process which is followed by the court for the purpose to determine the question of guilt or innocence of the person accused in respect of an offense. It means कि trial क्या कहा गया कि ट्रायल जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ जुडिशियल प्रोसेस फॉलोड बाय द कोर्ट.
जिसको कोर्ट फॉलो करती है, एंड द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस इज टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज इनोसेंट और गिल्ट. Here, in trial, court followed certain judicial process: examination of accused witness, then examination of defense witness, then examination of accused itself. These all are the part of the trial, and following this judicial process, court come to the conclusion of person innocent or guilt. And this way the term trial is being understood. A trial is a kind of judicial process by which court determine whether a person is innocent or guilty. So these are the three stages. Once we understand the meaning of this term, these are the three stages which is being followed for every offenses. Investigation, by which the evidence is being collected, and inquiry, by which it is being determined whether a person is being charged or not, and the trial is a process by which we will determine whether a person is innocent or guilty. Now come to the second part of this discussion: difference between inquiry, investigation, inquiry and trial. We noticed in definition, and these differences we come out through the reading of the definition. जो हम लोगों ने definition अभी पढ़ा इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में, इंक्वायरी का और ट्रायल को जिस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया, उसी के बेसिस पे हम लोग ये डिफरेंसेस कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में. तो वी विल नोटिस इट कि हु विल द कंडक्टिंग अथॉरिटी in investigation, inquiry and trial. So we come to the conclusion: the conducting authority in case of investigation is police officer or any person authorized by the magistrate. Now who is the conducting authority in inquiry? Court or magistrate. Now trial, who conduct trial? So this is also court or magistrate. So this way we come to difference between investigation, inquiry and trial. The investigation is being conducted by the police officer or any person authorized by the magistrate, or inquiry is being conducted by court or magistrate. Trial is also conducted by court or magistrate. So this way we notice first difference between investigation, inquiry, trial on the basis of conducting authority. Now offense. Investigation always relate with offense. Investigation is always being done. Whenever you say the investigation is going on, that investigation is always be in respect of offense. However, the inquiry may be either for judicial proceeding or a non-judicial proceeding also. Here we will notice section 126, then 164 and 166. These all are not a judicial proceeding, but here the term inquiry is being used. It means judicial inquiry may be either administrative inquiry or a judicial inquiry. Both inquiry we will here cover. तो यहाँ पे हम लोग ऑलवेज भी याद रखेंगे कि इंक्वायरी शब्द में कभी कभी हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है. इंक्वायरी वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में भी यूज़ होता है और जुडिशियल इंक्वायरी में भी यूज़ होता है. ऑल्दो द डेफिनेशन ऑफ द इंक्वायरी जो दिया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, दैट इज बीइंग डिफाइंड कि इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड बाय कोर्ट और मैजिस्ट्रेट. कोर्ट और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू एन ऑफेंस. Now trial is also related to an offense. So this way we understand that these investigation, inquiry and trial prominently being used for the purpose of offense. Offense is being investigated, offense is being inquired and offense is being tried. These terms will be used. Now oath. Investigation is a non-judicial proceeding. It is not conducted on oath. But inquiry and trial both are the judicial proceeding. So inquiry is always being conducted on oath. Oath is required to be taken
before inquiry start. It means because it is a judicial proceeding, and this is a prominent difference between judicial proceeding and non-judicial proceeding or an administrative proceeding. Administrative proceeding जो भी चलती हैं वो oaths पे नहीं चलती हैं, oath लेना उसमें ज़रूरी नहीं है, पर judicial proceedings में oath is being required. So we can here conclude कि investigation is not on oath but inquiry is on oath. Now the fourth point of distinction is result. What is the result of investigation? Once the investigation comes to an end, once the offense is reported, then investigation being carried out, और जब investigation समाप्त होगा तो result क्या होगा? Submission of police report under section 193 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. It means the result of investigation is submission of police report, or popularly we will call submission of charge sheet. This is a result of investigation. Now, inquiry results in framing of charges or discharge or final order or commitment of case under section 232 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Once the inquiry is begun, when we understand कि inquiry comes to an end, once the court frame the charge, जब तक कोर्ट फ्रेम चार्ज कर देगी, कोर्ट जब चार्ज को फ्रेम कर देती है तब हम लोग मानते हैं कि अच्छा इंक्वायरी एंड्स एंड द ट्रायल बिगिन्स. नाउ द रिजल्ट ऑफ ट्रायल इज आइदर कन्विक्शन और एक्विटल. कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा. दिस इज द रिजल्ट ऑफ ट्रायल. समटाइम्स वी विल नोटिस डिस्चार्ज इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन ट्रायल. वो थोड़ा सा एलोबरेट बात होगा, वो हम लोग बाद में समझेंगे. लेकिन नॉर्मली व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि द रिजल्ट ऑफ ट्रायल इज टू आइदर कन्विक्शन और एक्विटल. एंड फाइनली वी कम टू द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग. द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, मीन्स नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग. वी कैन से कि इन्वेस्टिगेशन एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, बस ट्रायल एंड इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. ट्रायल और इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है. तो दिस वे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल. इस तरह से हम लोगों ने समझा कि इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का और ट्रायल का मतलब फॉर द पर्पस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है और इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड फॉर अ बिगिनर ऑफ दिस सब्जेक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Now, coming to the term, now we will come to the final part of our introduction lecture, and here we will just discuss in the beginning कि first information report and complaint. FIR and complaint are the two modes through which you will take the recourse of this भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. हम लोगों ने बिगनिंग में ये बात किया था कि FIR और कंप्लेन ये दो मोड्स बनाए गए हैं और जिसके द्वारा आप इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हेल्प ले सकते हैं. तो दीज आर द वेरी प्रोमिनेंट टर्म्स ऑल्सो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड कंप्लेन, विच हेल्प्स टू टेक रिकोर्स ऑफ लॉ. वी कैन ऑल्सो से कि बाई using filing an FIR or by filing a complaint we will enforce this law. इस लॉ को हम लोग इन्फोर्स किस माध्यम से कराते हैं? FIR फाइल करके और कंप्लेन के. तो what is FIR? Once we just try to we understand कि the term FIR is not defined in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. FIR शब्द को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन नहीं किया गया है. Now there is only one place, that is section 230, where this term is being used, first information report. And section 230 says the magistrate to furnish to the accused a copy of first information report recorded under section 173. एक मैजिस्ट्रेट जो है वो accused को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ली गई है, उसको वो उसकी एक कॉपी फर्निश करेगा. देयर इज़ ओनली वन प्लेस दिस टर्म इज बीइंग यूज्ड, दैट इज सेक्शन 230. 230 सेक्शन 230 में ही वो एक जगह है जहाँ पे ये शब्द का
प्रयोग किया गया है कि एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक कॉपी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाएगी जो कि सेक्शन 173 में ली गई है। उसके अलावा इस शब्द को कहीं भी ना डिफाइन किया गया है, ना ही इसका ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द रिपोर्ट first recorded by police relating to the commission of cognizable offense is a first information report and it gives information on the cognizable crime. तो हम लोग क्या समझे कि first information report means a report means an information given to the police for commission of cognizable offense. बिकॉज 173 में के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है दैट इन्फॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस इन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो दिस वे व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग क्या समझ रहे हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। इन्फॉर्मेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इट इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड टू द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग पुलिस को इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस दे रहे हैं जो कि फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम है, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसी को हम लोग FIR कहते हैं एंड दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन अ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो दिस व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ FIR इज एज बेस्ड अपॉन सेक्शन 173 एंड अगेन इन अ पॉपुलर सेंस द FIR इज बीइंग अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टर्म कंप्लेन, हम लोग दूसरे शब्द पे आते हैं और वो है कंप्लेन। तो द टर्म कंप्लेन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21H ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कंप्लेन शब्द की परिभाषा जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी हुई है अंडर सेक्शन 2H एंड हियर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिफाइन कंप्लेन इज अ काइंड ऑफ एलिगेशन। कंप्लेन को इन सेंस ऑफ एलिगेशन डिफाइन किया है कि इफ समवन पुट्स एन एलिगेशन आइदर ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट, allegation putted by someone either orally or writing to a magistrate with a view that magistrate can take action under this code। और कि मैजिस्ट्रेट जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे if I putting the allegation against someone and it is in respect of some person whether known or unknown and has committed an offense but does not include a police report। So it means what important thing we will notice by reading the definition of section 21H, complaint is a kind of allegation. Complaint is made either orally or in writing and this is being made to the magistrate and the purpose of making complaint is that magistrate shall take some action which is being appropriate on the side of magistrate under this Sanhita and this complaint is made always in respect of offense। complaint हमेशा किसी अपराध के रिस्पेक्ट में। this complaint is either in respect of known person or a unknown person। ये आप कंप्लेन को चाहे नोन पर्सन के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं और इफ़ यू डोंट आइडेंटिफाई द रियल एक्यूज यू कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट कि हम उसको नहीं जानते, तो अननोन पर्सन के अगेंस्ट में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड द टर्म कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो है वो किसका रिजल्ट था? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का था, जिसको हम लोगों ने जो डिफरेंस पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्टेड इन पुलिस रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो है वो पुलिस रिपोर्ट। इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन बिगिन बाय फाइलिंग एन एफआईआर फाइल करके बिगिन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेन में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ यू कैन ऑल्सो नोटिस वन एक्सप्लानेशन इन अ कंप्लेन डेफिनेशन। आप जो है कंप्लेन के डेफिनेशन में एक एक्सप्लानेशन भी पाएंगे। वहाँ पे क्लियर किया गया है कि
there is one situation when a information is given in respect of the cognizable offense and police investigated that information on the basis of that information and it further disclosed the commission of non cognizable offense. पहले पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मान के उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जब बाद में उनको ये पता चला कि देयर इज़ अ डिस्क्लोजर ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो हियर द पुलिस ऑफिसर जो वो देन दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पुलिस रिपोर्ट, तो उस दशा में उसको पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो पुलिस रिपोर्ट ना मान के वहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको आप कंप्लेन मानिए और दैट पुलिस ऑफिसर इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए कंप्लेनेंट। तो दिस इज़ वाई हियर द टर्म यूज कि कंप्लेन में डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेन में कभी भी इंक्लूडेड नहीं है एंड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन मेक्स मोर एक्सप्लिसिटली क्लियर कि हाउ द कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, बिकॉज हियर इन एक्सप्लेनेशन पार्ट व्हाट वी विल सी कि इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, तो फिर पुलिस ने उसको क्या लॉ उसको कह रहा है ट्रीट करने के लिए कि नहीं, तब देन दैट इज़ नॉट अ पुलिस रिपोर्ट, दिस इज़ अ कंप्लेन एंड द पुलिस ऑफिसर हियर इज़ बीइंग कॉल्ड अ कंप्लेनेंट। तो हम लोगों ने जब कंप्लेन का डेफिनेशन देखा तो व्हाट वी विल नोटिस, हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस किए कि कंप्लेन जो है वो एक एलिगेशन है, ओरली में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट को किया जाता है। और मैजिस्ट्रेट को क्यों किया जाता है कि मैजिस्ट्रेट जो इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो उनको पावर्स मिले हैं उसके आधार पे वो एक्शंस लें। एंड कंप्लेन जो है वो हमेशा ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में होता है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन, और कंप्लेन या तो नोन पर्सन के अगेंस्ट में हो सकता है या तो अननोन पर्सन के अगेंस्ट में हो सकता है। तो हियर वन थिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी वांट टू डिस्कस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेन इज कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट अ कंप्लेन नीड नॉट नेसेसरली बी मेड बाय अ पर्सन इंजर्ड बट बी मेड बाय एनी पर्सन अवेयर ऑफ द ऑफेंस। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही हमेशा कंप्लेन फाइल करे, कंप्लेन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन हु इज़ अवेयर अबाउट द कमीशन ऑफ offense. Now, once we understand the term first information report and complaint, we will need to make a distinction between first information report and complaint also. हम लोगों को इनके बीच में अंतर भी समझना होगा। अंतर समझने से हम लोग की जो फर्दर क्लैरिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। फर्स्टली हम लोगों ने देखा कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन कंप्लेन शब्द की परिभाषा जो है वो सेक्शन 21H में दी गई है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट डिफरेंस कि द टर्म FIR इज़ नॉट डिफाइंड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बट द टर्म कंप्लेन इज़ डिफाइंड। नाउ द सेकेंडली वी अंडरस्टैंड FIR इज़ लॉज विथ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। FIR हम किसको दे रहे हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कॉल्ड FIR। ये हम लोग किसको फाइल करते हैं, तो ये पुलिस ऑफिसर को फाइल करते हैं। एंड कंप्लेन इज ऑलवेज फाइल्ड एज पर द डेफिनेशन, इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, कंप्लेन इज मेड टू द मैजिस्ट्रेट। नाउ FIR रिलेट टू द इंफॉर्मेशन एज इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ट्रीट किया जाता है। FIR इज ऑलवेज बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट कंप्लेन में रिलेट टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस वेदर कॉग्निजेबल वन और नॉन कॉग्निजेबल। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि FIR हमेशा कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में होता है, पर कंप्लेन जो है वो ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में होता है। चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नाउ वेदर FIR इज अ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस, तो यहाँ दैट इज क्लियर है, FIR इज नॉट द मटेरियल। कोर्ट FIR के बेसिस पे संज्ञान नहीं लेती है, FIR के इन रिजल्ट के बेसिस पे संज्ञान लेती है। तो इसलिए FIR is not a material on the basis of which court will take the
कॉग्निजेंस, बट कंप्लेन इज अ मटेरियल, कंप्लेन के बेसिस पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड कंप्लेन। एफआईआर क्या वो मटेरियल है जिसके आधार पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है? तो नहीं, एफआईआर के आधार पे कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है। एफआईआर का जो इन रिजल्ट है पुलिस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन कंप्लेन वो मटेरियल है जिसके आधार पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। Now, FIR once lodged with the police station, it cannot be withdrawn by the informant. Informant के द्वारा उसको withdraw नहीं किया जा सकता है। There is no process of withdrawal of FIR. ऐसा कोई करके process नहीं है। FIR में भी quest या पुलिस में give a closure report if nothing is to be found in the investigation, कुछ नहीं पाया गया अगर investigation में, तो ये सब कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि withdraw कर लिए FIR। वंस एफआईआर इज फाइल्ड तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग्स होगी ही होगी, अनलेस इट इज़ बीइंग क्वेश्ड और अनलेस द पुलिस फाइल अ क्लोजर इन द केस। बट इन समन केस कंप्लेन कैन बी विड्रॉ अ कंप्लेनेंट, लेकिन एक समन केस में कंप्लेन जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है कंप्लेनेंट के द्वारा। नाउ इन्फॉर्मेंट इज नॉट बाउंड टू टेक एन ओथ बिफोर द पुलिस ऑफिसर वाइल लॉजिंग द एफआईआर। जब आप एफआईआर फाइल करने जाते हैं तो आपको कोई ये नहीं कहता है कि आप ओथ पे एफआईआर को फाइल कीजिए, लेकिन वंस यू गो टू फाइल द कंप्लेन, तो कंप्लेन केस के प्रोसीजर में ये क्लियर है कि वंस यू गो तो फर्स्टली देयर इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड इन देयर विटनेस। कंप्लेन फाइल करने गए तो सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिनेशन होगा और उसके विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, और दैट एग्जामिनेशन इज टू बी डन ऑन ओथ। ओथ पे होगा, बिकॉज आप कोर्ट के पास गए हैं और कोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकती है, इसलिए देयर इज़ अ प्रोसीजर कि कंप्लेन केस जो फाइल करने गया तो कंप्लेनेंट और उसके विटनेस का पहले एग्जामिनेशन हो। तो एफआईआर इज़ नॉट फाइल ऑन ओथ, एफआईआर कभी ओथ पे फाइल करने के लिए नहीं प्रोसीजर है, लेकिन कंप्लेन इज ऑलवेज फाइल्ड ऑन ओथ बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। नाउ व्हेन एफआईआर इज लॉज्ड, अ पुलिस ऑफिसर स्टार्ट विथ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। जब एफआईआर होगा तो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वेयर एज व्हेन कंप्लेन इज फाइल्ड, इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन और इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी ऑल्सो डन। एफआईआर फाइल होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा, क्योंकि एफआईआर इज एन इनिशियल पॉइंट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। बट वंस a complainant file a complaint, it is always not necessary that investigation is being done, unless it is being directed by a magistrate। कि complaint केस जब मैजिस्ट्रेट के पास गया और मैजिस्ट्रेट फील्स की इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, तब वो इन्वेस्टिगेशन होगा। तो यहाँ हम लोग ये समझे कि एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन कंप्लेंट में कोई आवश्यक बात नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा। जब तक मैजिस्ट्रेट को या लगेगा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तब तक उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ फाइनली देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ FIR. Once you go to file an FIR, as per the direction of the state government, every police station maintain a register, and in that format FIR is being filed. For a complaint there is no prescribed format. कंप्लेन करने के लिए मैजिस्ट्रेट को कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। तो दिस वे वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड कंप्लेन, एंड वी विल बी, I hope so, you will now be able to understand or appreciate the term investigation, inquiry and trial, and differences between these preceding investigation, inquiry and trial, and finally you will also able to understand, आप ये भी समझ गए होंगे कि what is FIR, what is complaint, and how this FIR and complaint is being differentiated between each other. So thank you. We will meet in next lecture of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita.